رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب میری پیاری ساتھیوں؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ اپنوں کے ساتھ، اپنوں کے بیچ خیر و عافیت سے ہوں انشاءاللہ۔ اسرۃ القرآن کی جانب سے دور قرآن کی اس محفل میں آپ سب بہنوں کا میں تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ، میں، ہم سب اسی طرح قرآن سے جڑے رہیں اور یہ قرآن کو سیکھنے سمجھنے کا قافلہ آگے بڑھتا رہے، آمین۔ آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت اور ترجمے سے۔ میں ہماری پیاری بہن عافیہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تلاوت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 101 to 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ: اور جب زمین میں سفر کرو تو تم پر نماز قصر کرنے، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھنے میں کوئی برائی نہیں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں ہوں اور ان کے لیے نماز کو قائم کریں تو چاہیے کہ ان کا ایک گٹ آپ کے ساتھ ہتھیار لیے کھڑا ہو کہ جب یہ سجدہ کر چکے ہوں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گٹ جس نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ جائے اور تیرے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیار اور اپنے سامانوں سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک حملہ کر دیں، اور ہاں، اپنے ہتھیار اتار کر رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی برائی نہیں جبکہ تم تکلیف میں ہو یا بارش کی وجہ یا روگ ہونے کی وجہ ہو، اور اپنے بچاؤ کے سامان ساتھ میں لیے رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نکارنے والوں کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر بہن، اللہ آپ کو علم نافع عطا کرے۔ اب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتی ہوں ہماری ٹیچر
ہماری روزی باجی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا سورہ نیسا چل رہے ہیں۔ پچھلے دن ہم لوگ 100 آیت تک پڑھ لیے ہیں، آج 101 آیت سے شروع ہو رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ کیا دیکھا؟ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر نماز کو مختصر کر لو، خاص طور سے جبکہ تمہیں ڈر ہو کہ کفر کرنے والے لوگ تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو پچھلے آیتوں میں ہم کیا دیکھا تھا؟ پچھلے آیتوں میں جہاد کے بارے میں تھا، ہجرت کے بارے میں تھا۔ تو جہاد، ہجرت یہ سارے کرنے کے لیے سفر کرنا ہوتا، گھر سے نکالنا ہوتا، اور ایسا سفر میں دشمن کا ڈر بھی رہتے ہیں۔ تو اسی لیے سفر اور خوف کے حالات کی طرف دھیان رکھتے ہوئے اللہ نے نماز میں کچھ نرمی یعنی چھوٹا کرنے کا اجازت دیے ہیں۔ ہم یہ سورہ نساء آیت نمبر 28 میں بھی دیکھا کہ اللہ نے کیا بتایا آیت نمبر 28 میں، کہ اللہ نے تمہارا پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، انسان کمزور ہے، سفر کی حالت میں مشکل ہوگا، تو اللہ نے یہاں نرمی کرنے کا اجازت دیے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ نماز کو چھوٹا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سفر کتنا دن کا ہے، کتنا دور کا ہے، نماز کتنا چھوٹا کرے، یہ سارے لے کے بہت سارے بحث یا ڈیفرنس آف اوپینین اختلاف ہے۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حالت میں کیا کرتے تھے کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جو سنت اور عشاء کی جو وتر وہ تو پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ چھوڑتے نہیں تھے، اور باقی وقت کا جو نماز اس میں فرض جو نماز وہ پڑھتے تھے، وہ بھی جو 4 رکعت وہ چھوٹا کر کے 2 رکعت اسی طرح۔ اور یہ بھی اللہ کے طرف سے ایک انعام ہے۔ سفر میں مشکل ہوتا ہے پڑھنے میں، تو اللہ نے جب یہ اجازت دیے ہیں تو ہمیں یہ ایکسیپٹ قبول بھی کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ یہ قصر کی اجازت ایک انعام ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اسی لیے اس کے انعام کی قبول کرو۔ تو کبھی کبھار لگتا ہے نا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم پورا پڑھ لیں گے، لیکن اللہ نے جب یہ انعام دیے ہیں، جیسے کہ جب مارکیٹ جاتے ہیں ہم بائی 2 get 1 free ایسا آفر رہتے ہیں، انعام رہتے ہیں، تو کیا ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے ڈریس ہے، ہم 2 ہی خریدیں گے، فری والا جو بائی 2 get 1 free تو get 1 free والا ہم نہیں لیں گے؟ ہم تو یہ نہیں کہتے، یہ انعام ہے، یہ وہ لوگ دے رہے ہیں، ان لوگوں نے ایسا پالیسی بنایا ہے، ہمارا جتنا بھی ہو ڈریس ہو، ہم 2 خریدنے سے اگر وہ آفر ہے تو جو فری والا وہ بھی ہم لیتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح تو اللہ نے جو انعام، جو ہلکا، جو نرمی ہم سے کیا ہے، اسے بھی ہمیں قبول کرنے میں ہی فرمانبرداری کا درجہ حاصل ہوگا۔ نیکسٹ آیت، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے بیچ ہو اور لڑائی کی حالت میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ یعنی ایک گروپ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروپ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے ہتھیار لیے رہے، کیونکہ کافر اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف میں ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں خوف لڑائی کے حالت میں یعنی دشمن کے حملہ کا خطرہ تو ہے، لیکن ابھی تک عملی طور پر لڑائی چھڑی ہوئی نہ ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو کس طرح نماز پڑھا جائے
उसी का ही तरीका यहाँ बताया गया है कि एक लाइन पहले आ जाए, इमाम के साथ नमाज पढ़ ले, वो पीछे हट जाए, हाथ में हथियार रखे, इसी तरह चौकन्ना रहे, नमाज का जो तरीका ये बताया गया है। तो अभी ये जो आयत हम पढ़े अभी तक, कसर, खौफ और ये जो लड़ाई की मैदान में, इसमें जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इख्तिलाफ है, ये सारे हम साइड में रख देते हैं। हमें सबक, हमें लेसन क्या मिल रहे हैं कि हर हाल में हमें नमाज पढ़ना है, नमाज छोड़ने का चीज नहीं है। यह चाहे अल्लाह ने नरमी किया, छोटा करके भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, छोड़ना नहीं, हर हाल में पढ़ना है, ये नमाज का अहमियत है। नेक्स्ट आयत में अल्लाह फरमा रहे, फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहो, और जब इत्मीनान हासिल हो तो इत्मीनान हासिल हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज हकीकत में ऐसा फर्ज है जो वक्त की पाबंदी के साथ, वक्त की पाबंदी के साथ ईमान वालों पर लाजिम किया गया है। फिर ऐसा हालत में सफर या जो भी है, नमाज तो पढ़ लिया किसी हाल में, फिर अगर फारिग हो गए, फिर खड़े बैठे लेटे हर हाल में जिक्र करते रहो। अल्लाह का याद, नमाज की अल्लाह का याद है ना, तो ना अल्लाह को याद करते रहो। और आखिर में क्या कहा गया कि नमाज वक्त के पाबंदी के साथ है। तो जब वक्त आ जाते हैं तुरंत हमें उसी वक्त पर नमाज पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि असर का नमाज अभी शुरू हुआ, मगरिब तक है, तो कभी भी पढ़ लेंगे मगरिब से पहले। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आयत में अल्लाह ने फरमा रहे नमाज जो लाजिम किया गया वो वक्त के साथ, वक्त के साथ। फिर बात ये भी है कि समझो कि अल्लाह सबको सही सलामत रखे, समझो कि असर तक हम हयात में हूँ, जिंदा हूँ, तो असर का वक्त आया तो हमारे लिए वो नमाज फर्ज हो गया। हमने गफलत में सोचा मगरिब से पहले पढ़ लेंगे, अल्लाह ना करे किसी का उसी बीच में मौत आ गए है, तो असर का वक्त तक वो जिंदा था, नमाज उस पर फर्ज हुआ था, लेकिन वो नहीं पढ़े, थोड़ा लेट किया, डिले किया, और इन द मीन टाइम डेथ हो गया, तो उसका अमलनामा में क्या लिखा रहेगा? जो आखिरी नमाज का जगह है, जो कलम है, वहाँ क्रॉस मार्क हो जाएगा, है ना। तो जब वक्त आया है तुरंत हमें नमाज पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह हमें इसका तौफीक अता फरमाए, आमीन। आयत नंबर 104। इस ग्रुप का पीछा करने में, कौन सा ग्रुप? जो इस्लाम का दुश्मनों का जो ग्रुप है, उसका पीछा करने में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं है। हम अल्लाह से किस चीज का उम्मीदवार हो? अल्लाह का खुशनुदी का, अल्लाह का करीबी का, अल्लाह से इनाम मिलने का। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हिकमत वाला, गहरी सोच वाला है। नेक्स्ट आयत जो है 105 से लेकर 113 है। ये जो आयत, यहाँ जो चीज बयान हुए हैं उसके पीछे एक अहम मामले का बात है, एक हादसा, एक वाकया है। थोड़ा सा वो हम बयान कर लेते हैं, फिर ये आयत तर्जुमा पढ़ लेंगे। वो हादसा क्या था? मदीना में एक अंसार जिसका नाम तोआमा या बशीर है, ऐसा नाम का एक आदमी, उसने दूसरा एक अंसार का एक जीरा यानी कवच चुराया था एक चीज। जब वो चीज का तलाशी शुरू हुआ तो वो चीज एक यहूदी के वहां रख दिया, यहूदी को फंसाया। फिर जीरा का जो मालिक जिसका चीज गुम हुआ था, उसने ये मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा, और वो खुद अपना डाउट, अपना शक वो तोआमा नाम का जो आंसर था उसी पर जाहिर किया। तो तोआमा का रिश्तेदार, दोस्त सब आकर बोला नहीं ये यहूदी ने किया है, वो यहूदी को फंसाया। तो यहूदी को जब पूछा गया तो वो तो बेचारा बेकसूर, वो बोला मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैंने तो नहीं चुराया। तो इन लोगों ने बोला कि वो यहूद है, उसका बात क्या मानना है, बल्कि हम मुसलमान हैं, हमारी बात मानने का है। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया था कि लग रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबूत और गवाही के तौर पर यहूद के खिलाफ फैसला कर देते। बिल्कुल ऐसा सिचुएशन हो गया था। इतने में अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुआ और सारी हकीकत खोल दी गई। अगर उसी वक्त जो उन लोगों का गवाही पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो यहूद के खिलाफ फैसला ले लेता तो क्या होता?
जो इनकार करने वालों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुश्मन, उन लोगों को हाथ में एक बड़ा हथियार मिल जाता। क्या हथियार? कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देता है हक और इंसाफ का, और उन्होंने कैसा कैसा फैसला लिया। एटलीस्ट वो यहूद तो जानता था कि उसने नहीं चुराया, लेकिन उसका खिलाफ फैसला लिया गया। तो इस आयत में इसीलिए अल्लाह ने, इतना बड़ा चीज होने जा रहे थे तो अल्लाह ने इस मामला में दखल दिया, वही के जरिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात खोल दी। तो ये आयत में एक तरफ तो मुसलमानों को, उन मुसलमानों को मलामत की गई, किनको? जिन्होंने सिर्फ अपना खानदान, अपना रिश्तेदारी, फ्रेंडशिप के लिए वो गलती करने वालों को मदद की। और दूसरी तरफ आम मुसलमानों को यह सबक दिया गया कि इंसाफ सबके लिए है, अदल इंसाफ सबके लिए है। वो मुसलमान है इसीलिए उसका बात माना जाएगा, वो यहूद है इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, उस पर इंसाफ नहीं होगा, ऐसा नहीं। इंसाफ, हक, अदल ये सबको दिया जाएगा। हम जानते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी की बुनियाद पर हिल्फुल फुजूल हुआ था। तो ये अभी हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, इसके पीछे यही बैकग्राउंड है इसका। आयत नंबर 105, ये नबी, हमने ये किताब हक के साथ तुम्हारी तरफ उतारी है ताकि जो सीधा रास्ता अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है उसके मुताबिक लोगों के बीच फैसला करो। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले ना बनो और अल्लाह से माफी की दरखास्त करो, वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से ज्यादा अस्तगफार किया करते थे, ये भी हदीस से हमें मालूम होता है। तो चाहे कि हम भी अस्तगफिरुल्लाह एटलीस्ट इतना पढ़ने का आदत डालें। जो लोग खुद अपने आप से खियानत करते हैं तुम उनकी हिमायत ना करो। अल्लाह को ऐसा आदमी पसंद नहीं है जो खियानत करने वाला और गुनाह करने वाला हो। ये लोग इंसानों से अपनी करतूतों को छिपा सकते हैं मगर अल्लाह से नहीं छिपा सकते। वो तो उस वक्त भी उनके साथ होता है जब ये रातों को छिपकर उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे करते हैं। इनके सारे कामों को अल्लाह अपने दायरे में लिए हुए हैं। हाँ, तुम लोगों ने इन मुजरिमों की तरफ से दुनिया की जिंदगी में तो झगड़ा कर लिया, मगर क़यामत के दिन इनके लिए अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा? आखिर वहाँ कौन इनका वकील होगा? अगर कोई आदमी बुरा काम कर बैठे या खुद अपने पर जुल्म कर जाए और उसके बाद अल्लाह से माफी की दरखास्त करे तो अल्लाह को माफ करने वाला और रहम करने वाला पाएगा। मगर जो बुराई कमा ले तो उसकी ये कमाई उसी के लिए बवाल होगी। अल्लाह को सब बातों की खबर है और वो गहरी समझ वाला और सब कुछ जानने वाला है। फिर जिसने कोई खता या गुनाह करके उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया, यानी वो यहूद पर थोप दिया था ना, जो गुनाह उसने नहीं किया था, तो जिसने कोई खता या गुनाह करके उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर थोप दिया उसने तो बड़े बहुतान और खुले गुनाह का बोझ समेट लिया। ये नबी, अगर अल्लाह का फजल तुम पर ना होता और उसकी रहमत तुम्हारे साथ ना होती तो इनमें से एक ग्रुप तो तुम्हें गलतफहमी में डाल देने का फैसला कर ही लिया था। हालांकि हकीकत में वो खुद अपने सिवा किसी को गलतफहमी में नहीं डाल रहे थे और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत उतारी है और तुमको वो कुछ बताया है जो तुम्हें मालूम नहीं था और उसका फजल तुम पर बहुत है। ये अल्लाह का फजल, अगर ये गलत फैसला हो जाता तो कितना खराब होता है, कितना। इसीलिए जब हम किसी से कोई फैसला लेने जाए तो हम जो गवाही दे रहे हैं या जो सबूत, जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो सही होना चाहिए। झूठ रिकॉर्ड बना के, झूठ दलील बना के या झूठा गवाही दे के अगर हम कोई फैसला के लिए जाए तो जो काजी है, जो हाकिम है, जो जज है, वो तो जो प्रूफ और विटनेस, इसी के बेसिस पर वो तो फैसला लेंगे ना। वो भी तो एक इंसान है, प्रूफ ये है, विटनेस ये है, तो उस मुताबिक फैसला होगा। तो इसीलिए प्रूफ और विटनेस ये भी सही होना चाहिए। अल्लाह हमें सही राह पर चलाने वाला बनाए। आयत नंबर 114, लोगों की खुफिया कानाफूसियों में ज्यादातर कोई भलाई नहीं होती। यहाँ कानाफूसिया के बारे में बात हो रहा है। कानाफूसिया जो अगर जिक्र हो, अल्लाह का जिक्र हो, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो खुफिया कानाफूसिया, खुफिया चीज ही होता है ऐसा जो चीज हम जाहिर करने में हम डरते हैं, शर्मिंदा होता है, वही खुफिया तौर पर करते हैं। तो लोगों की खुफिया कानाफूसियों में ज्यादातर, हर एक नहीं,
ज्यादातर कोई उसमें भलाई नहीं होती। हाँ, अगर कौन सा अच्छा है, अगर कोई छिपे तौर पर सदका या किसी भले काम के लिए उकसाए या लोगों के मामले में सुधार के लिए किसी से किसी कहे तो अलबत्ता ये भली बात है, ये अच्छा है। और जो कोई अल्लाह उनकी खुशी चाहने के लिए ऐसा करेगा उसे हम बड़ा बदला देंगे। हाँ, किसके लिए कनाफूसिया करेगा? अल्लाह के खुशी के लिए, तो अल्लाह बदला देंगे। मगर जो आदमी रसूल की दुश्मनी पर उतर आए और ईमान वालों के रवैये के सिवा किसी और राह पर चले, जबकि उस पर सीधा रास्ता वाजे हो चुका हो। सीधा रास्ता वाजे हम पर हो चुके हैं, है ना। हम सूरह फतिहा में इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांगे थे, अल्लाह ने बता दिया जालिकल किताब, यह किताब क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है। तो सीधा रास्ता वाजे हो चुका हो तो उसको हम उसी तरफ चलाएंगे जिधर वो खुद फिर गया, और उसे जहन्नम में झोंकेंगे जो सबसे बुरा ठिकाना है। जो सीधा रास्ता के अलावा दूसरा रास्ता अपनाएगा उसके लिए यहाँ बताया जा रहे हैं। नेक्स्ट आयत, अल्लाह के यहाँ बस शिर्क ही की माफी नहीं है, इसके सिवा और सब कुछ माफ हो सकता है जिसे वो माफ करना चाहे। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। देखो ये शिर्क के बारे में सूरह निसा में ही, सूरह निसा आयत नंबर 48 में हम लोग एक दफा पढ़ चुके हैं कि शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये एक गुनाह है। इसके अलावा जो गुनाह अल्लाह चाहे तो माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क को नहीं। आयत नंबर 48 में हम पढ़े हैं ये आयत में भी पढ़ रहे हैं। फिर इससे सख्त बात, इससे भी बहुत सख्त बात सूरह माइदा में है। क्या है? इस आयत में तो है शिर्क को माफ नहीं करेगा, सूरह माइदा में बताया गया कि शिर्क करने वालों के लिए जन्नत हराम कर दिया जाएगा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हमें महफूज रखे। शिर्क क्या होता है? शिर्क अल्लाह के साथ और किसी को शरीक करना। अल्लाह की जात में अल्लाह एक है, ना तो अल्लाह का ईसा अलैहिस्सलाम बेटा है, उनका जात में और कोई नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है। अल्लाह का सिफत में भी शरीक ना करे। अल्लाह जैसी सिफत क्या है? हम यहाँ दुआ मांगे अल्लाह सुन लेंगे, हम यहाँ कुछ चीजें मांगे अल्लाह से अल्लाह सुन लेंगे। अल्लाह जैसा सुनने का सिफत और किसी में नहीं है, ना कोई पीर फकीर दरवेश। हुकूक में इबादत का हकदार, हुकूक में अल्लाह एक है, कोई शरीक नहीं है। हम इबादत करेंगे तो सिर्फ अल्लाह के लिए, हुकूक में अल्लाह एक है। इसी तरह इख्तियार में भी अल्लाह एक है। ये दुनिया अल्लाह का बादशाही में अल्लाह का कानून चलने का अल्लाह का इख्तियार है कि अल्लाह कानून बनाए। क्या चीज जायज, क्या नाजायज, क्या हलाल, क्या हराम, ये बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का है। हम अपना हिसाब से, अपना मर्जी के मुताबिक या अपना जो फेवरेबल सिचुएशन है उस मुताबिक अपना रूल, अपना रेगुलेशन नहीं बना सकते। अल्लाह का बादशाही है, इख्तियार है अल्लाह का जात, सिफत, हुकूक, इख्तियार में किसी को शरीक ना करे। और अल्लाह ने बता दिया, बार बार बता दिया, ये एक गुनाह है जिसका माफी नहीं होता। अल्लाह ने मेराज में, आज भी आई थिंक मेराज है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज में गए थे तो अल्लाह ने 3 तोहफे दिए थे। उनमें से एक तोहफा ये है कि उम्मत मोहम्मदी में जो शिर्क से पाक होके आएगा वो बख्श दिए जाएंगे। तो इसी मौके पर और ये सुनते हुए हम सब तौबा भी कर ले। अगर जाने अनजाने में हमसे कुछ शिर्क हो गए हैं तो हम तौबा कर लेते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, और शिर्क करने का जो अजाब है उससे अल्लाह हमें बचा ले। हम शिर्क से तौबा करते हैं अगर हमसे जाने अनजाने में कुछ हो गया तो ये बहुत डराने वाली चीज है ये, क्योंकि तमाम ये शिर्क एक गुनाह है जो माफ नहीं होता, और बार बार अल्लाह ने ये हमें याद दिला रहे हैं। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। वो अल्लाह को छोड़कर देवियों को माबूद बनाते हैं। देवियों यानी लात, मनात, उज्जा। फिर उसी टाइम अरब के लोगों ने फरिश्तों को अल्लाह का बेटी भी मानते थे, तो देवियों को माबूद बनाते थे। वो उस बागी शैतान को माबूद बनाते हैं, शैतान को मरदूद, उसको माबूद बनाते हैं, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। शैतान पर अल्लाह ने लानत की है।
जिसने यानी शैतान ने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा। शैतान ने अल्लाह से कहा मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा। बंदा से हिस्सा लेंगे, कैसा? बंदा का वक्त में वो हिस्सा डालेगा, हिस्सा लेगा, वक्त में, मेहनत में, कोशिशों में, ताकत में, काबिलियत में, माल औलाद, हर चीजें में शैतान हिस्सा लगाएंगे। धोखा देकर परचाऊंगा कि सारी चीजों का एक बड़ा हिस्सा वो शैतान की राह में लगाएंगे। कैसे? अगर समझो वही जो कनाफूसिया, अगर हम गलत तरीके से कर रहे हैं तो हमारा वक्त में शैतान ने हिस्सा लगा दी। वो वक्त शैतानी काम में गए हैं। हम कुछ गलत तालीमात के लिए बच्चे को कोचिंग में भेज रहे हैं, हमारा वो माल, हमारा वो वक्त, हमारा बच्चे अगर गलत तालीम के लिए, गलत कोचिंग के तरफ जो अल्लाह के राह में नहीं है या जो जायज नहीं है, जो चीज का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, तो वो भी पैसा, वो भी वक्त, वो भी बच्चे को लगाना, ये भी उसी में भी शैतान ने हिस्सा लगा लिया है। तो यहाँ हमें मुहस्बा करने का है कि क्या हम शैतान ये जो चैलेंज ये किया है, क्या हम हमारा समझ में आते हैं? कुरान में इतना इजी लैंग्वेज में अल्लाह ने फरमा दिया तमाम चीजें, शैतान ने क्या कहा, किस तरह वो फंसाते हैं और उससे बचवा क्या है, कैसे हम बच सकते हैं, तमाम चीजें अल्लाह ने बयान की है। शैतान और क्या कहेगा कि मैं उन्हें बहकाऊंगा, मैं उन्हें आरज़ुओं में उलझाऊंगा, मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से जानवरों के कान फाड़ेंगे, यानी अल्लाह के अलावा और किसी के लिए वो जानवर को मार निशानदेह कर देंगे। और मैं उन्हें हुक्म दूंगा और वो मेरे हुक्म से अल्लाह की बनाई हुई शक्ल फेर बदल करेंगे। फेर बदल का मतलब क्या है कि जो फितरत के खिलाफ कर देंगे, फितरत के खिलाफ, यानी अल्लाह ने दुनियादारी दिया है हमें, दुनियादारी में जो चीज अल्लाह ने दिया है वो तमाम चीजें को इस्तेमाल, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करके अल्लाह के राह में चलना, यही हमारा मकसद है ना। लेकिन जो रहबानियत यानी जो सन्नास, जो दुनियादारी से रूप फेर कर सिर्फ बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तमाम दुनियादारी से वो बेखबर है या कुछ नहीं करते, तो ये भी ठीक नहीं है ना। फितरत में क्या है, जो फितरत को बदल देना, इस आयत में फेर बदल का वही मतलब होता है। उस शैतान को जिसने अल्लाह के बदले अपना दोस्त और सरपरस्त बना लिया, वो खुले घाटे में पड़ गया। वो इन लोगों से वादे करता है, यानी शैतान वादे करता है, क्या वादा, और इन्हें उम्मीद दिलाता है, मगर शैतान के सारे वादे धोखे के सिवा कुछ नहीं है। उम्मीद दिलाता है, किस चीज का उम्मीद, कि तुम देखो ये शैतानी काम करो, तुम्हें कामयाबी मिलेगा, तुम्हें सरबुलंदी मिलेगी, तुम्हें तसल्ली मिलेगी। तो इसी तरह धोखा देता है। उसका जो वादा, शैतान का वादा तो धोखा। इन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, जिससे छुटकारे की कोई सूरत तो नहीं पाएंगे। जो शैतान का पैरवी करेगा, जो तागूत का पैरवी करेगा, उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। रहे वो लोग जो ईमान ले आए और अच्छे काम करे, तो उन्हें हम ऐसी बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से बढ़कर कौन अपनी बात से सच्चा होगा। हम हमेशा कुरान में क्या देखते हैं, जब बदबख्त अपना बदकारी की और उसका अंजाम में जहन्नम हुआ। इसी तरह अल्लाह ने पिछले आयतों में यही बोला ना, जो शैतान इसी तरह बहकाएंगे, गलत अर्जुओं में, ये सारे बातें हैं, यानी बदबख्त का बदकारी, उसका अंजाम जहन्नम है। इसी तरह फिर इसके तुरंत बाद अल्लाह ने जो नेकवक्त है, जो नेक इंसान है, जो ईमान वाले हैं, उसका ईमान का, उसका नेक अमल का अंजाम जो जन्नत है, उसका जिक्र भी आया साइड बाय साइड। गलत करोगे तो ये, अच्छा करोगे तो ये, कुफर का रवाया इख्तियार करोगे तो ये, ईमान का तो ये। इसी तरह अल्लाह ने साइड बाय साइड, तो पिछले आयत में ये था, तो आयत नंबर 22 आयत में जो ईमान वाले, जो नेक का, उन लोगों और उनका अंजाम, उनका ठिकाना जन्नत, वो कैसा जन्नत, वो भी अल्लाह ने फरमा दिया। नेक्स्ट आयत, अंजाम ना तुम्हारी आरजुओं पर डिपेंड करता है और ना किताब वालों की आरजुओं पर।
जो भी बुराई करेगा उसका फल पाएगा और अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई हिमायती और मददगार नहीं पा सकेगा। तो अंजाम ना हम जो चाहते हैं, जो ख्वाहिश करते हैं इसी पर है, ना किताब वालों का, ना किसी का है। तो अंजाम जन्नत मिले, जन्नत का कीमत है ना, जन्नत जाने के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। सिर्फ आरजू हम ख्वाहिश करेंगे, आरजू करेंगे, तमन्ना करेंगे, मांगते रहेंगे, मांगना तो है ही, बट सिर्फ आरजू पर डिपेंड नहीं करता। और जो अच्छा काम करेगा यानी नेक अमल करेगा। नेक अमल तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, कितना ऑर्फनेज चलाते हैं, कितना जो ओल्ड एज होम चलाते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, अपना जिंदगी पूरा दूसरे का सर में लगा देते हैं। अच्छा अमल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अच्छा अमल काबिल कबूल कब होगा? शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? ये आयत में अल्लाह ने फरमाया, जो अच्छा काम करेगा यानी नेक अमल करेगा, शर्त यह है कि वो ईमान वाला, ईमान का पहला शर्त है, अमल कबूल होने का पहला शर्त है ईमान। पहले ईमान लाओ फिर नेक अमल करो, तब वो काबिल कबूल होगा। अदरवाइज जो लोग ईमान वाले नहीं है उन लोगों में भी बहुत है, दूसरों को इतना हेल्प करता है, इतना मदद करता है, इतना जो यतीमों पर खर्चा करता है, ऑर्फनेज चलाते हैं, तो उन लोग भी तो तब जन्नत का हकदार होंगे ना। अल्लाह जिसे चाहे जन्नत में दाखिल करेंगे ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये आयत में अल्लाह जो फरमा रहे हैं, नेक अमल शर्त किया है वो ईमान वाला हो, है ना, ईमान के साथ नेक अमल, ऐसे ही लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनका जर्रा बराबर भी हक नहीं मारा जाएगा। उस आदमी से बेहतर जिंदगी का तरीका क्या है? दीन, उसे हम दीन कहते हैं ना। हमारा जिंदगी जीने का जो तरीका वही हमारा दीन है। तो उस आदमी से बेहतर जिंदगी का तरीका और किसका हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे फर्मा बरदारी के साथ सिर झुका दिया। अल्लाह के आगे सिर झुका दिया। कैसे सिर झुका दिया? फर्मा बरदारी के साथ, और अच्छे से अच्छे रवैया अपनाया, अच्छे नेक अमल की, अच्छा अखलाक अपनाया, और यकसू होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को पैरवी की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था? यकसू, हनीफ, तमाम चीजें छोड़कर एक अल्लाह की तरफ। उस इब्राहिम के तरीके, कौन इब्राहिम? जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। सुभान अल्लाह, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दोस्त बना लिया था। दोस्ती से बढ़कर और कौन सा दर्जा है? दोस्ती मोहब्बत का सबसे ऊंचा मुकाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मुकाम तक पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे? मुकम्मल फरमाबरदारी के जरिए, यकसू होकर मुकम्मल फरमाबरदारी। उन्होंने अल्लाह का हुक्म एक हुक्म को माना। और कैसे माना? बेजारी के साथ? बिल्कुल नहीं, दिल से माना, खुशी के साथ, राजी होकर माना। ऐसा नहीं कि अरे अल्लाह ने हुक्म दिया, मुझे ही सिर्फ हुक्म देते हैं, मुझे करना पड़ता है, चलो हुक्म है तो कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने राजी होकर खुशी के साथ अल्लाह का तमाम हुक्म का फरमाबरदारी किया था। इबादत में कभी कोई बेजारी नहीं दिखाया। हम किसे दोस्त बनाते हैं? हम और आप किसे दोस्त बनाते हैं? जिसके साथ जो हमारा रंग में रंग जाते हैं, जो हमारा रंग को अपना लेते हैं, उसे ही हम दोस्त बनाते हैं ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसका रंग अपना लिया था? सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग अपना लिया था। अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह का रंग है अल्लाह का फरमाबरदारी। अल्लाह का रंग जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना लिया तो अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने उनको दोस्त बना लिया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील, अपना दोस्त बना लिया। सुभान अल्लाह, ये कितना, इसका तफसीर हम क्या पढ़े, हमारा इतना सलाहियत है ही नहीं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त बना लिया था। अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीका जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया है, हमें सिखाया है, हमें भी उसका सही पैरवीकार बनाए। आमीन।
कहने में सुनने में कुछ भी गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे, कहने से सुनने से ज्यादा अमल का तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।